Good evening, student. Chapter 1 in that 1.2 exercise. Question number 5. See, today we are going to study. Okay, max 2, chapter 1. Question number 5. We have a small number line. Yes, in that we have a point T, S, R, P, Q. T, S, R, P, Q. Yes, we have to see this diagram and give the answer. Question number 1. See, first one. Write the name of the opposite ray of RP. See, the opposite ray, R is the point. We have to go in right hand side. Here we have to go in left hand side. So we get the opposite ray starting with the R point. So see, opposite ray of ray RP R. So तुम ray RS. See, RP we go right hand side, RS we go left hand side. ठीक है, RS और ray RT. So we have a two opposite ray, RS and RT for ray RP. RP के लिए हमारे पास दो अपोजिट रे है, RS और RT. Next question, question number 2. Write the intersection of the set PQ and RP. Intersection of the set of ray PQ and RP. इंटरसेक्शन क्या है, वापस देखेंगे. देखो, दिस इज, ये मैं कैंसिल करता हूं. सेकेंड सम के लिए इंटरसेक्शन ऑफ रे PQ. PQ कहां पे, देखो PQ कहां पे है, PQ ये बाजू है बेटा, रे PQ यहाँ पे है. और रे RP कहां पे है, RP ये साइड पे है. देखो कैसे जा रहे हैं, RP और PQ रे. उसमें से इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कितने आएंगे, देखो ये पार्ट इंटरसेक्शन में आएगा. ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा बोलो, लाइन QR. RQ पे मैं जाता हूं और PQ पे जाता हूं, तो दोनों में कॉमन क्या है, जो मैंने रेड पेन से किया है ना, वो कॉमन है. सो आई एम राइटिंग द आंसर फॉर सेकेंड. लाइन QR, are you understanding or not? Line QR is the set of intersection is line QR is set of intersection of ray PQ
and ray RP and RP. See, go through it. वापस बोल रहा हूं बेटा. Line QR is a set of intersection of a ray PQ and ray RP. Third question. Write the union set of PQ and QR. Third, answer third. ठीक है. Read the question properly. Write the union set of segment PQ and segment QR. मैं ड्रॉ करूंगा कहां पे, देखो सेगमेंट PQ एंड सेगमेंट QR कहां पे है. ठीक है. यस, सेगमेंट PQ. पे अटेंशन प्रॉपरली. सेगमेंट PQ कहां पे है, ये है सेगमेंट PQ. ठीक है. एंड सेगमेंट QR, ये सेगमेंट QR है. ठीक है. एकदम ध्यान से, ग्रीन कलर के पेन से किया है. उसका यूनियन क्या आएगा, लाइन PQ. लाइन PQ यूनियन मतलब क्या, दोनों लाइन पे कॉमन पॉइंट जो होते हैं उसको यूनियन बोलते हैं. तो कैसे लिखेंगे, देखो. थर्ड वन, सेगमेंट यूनियन सेट ऑफ. थर्ड आंसर आई एम राइटिंग यूनियन set of segment PQ and segment QR. This is right from the question only. Union set of segment PQ and segment QR is line PQ. Beta, are you understanding properly? Ask your doubt. See, देखो दोनों में कॉमन क्या है, लाइन PQ ही है. PQ और QR दोनों में कॉमन क्या है, PQ. तो मैंने ये थर्ड आंसर में लिख दिए. नेक्स्ट, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज सबसेट. रे QR इज सबसेट. आंसर 4. पे अटेंशन. पहले डायग्राम में मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाद में आंसर लिखूंगा. फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज सबसेट. QR कहां पे बेटा, QR यस, पे अटेंशन. QR कहां पे है, डायग्राम में देखो QR कहां पे. ओके, जो रेड कलर का है वही QR है. सेगमेंट QR इज सबसेट. तो कौन से रे आते हैं इसमें, रे PQ भी आता है. देखो रे PQ भी आता है. 1 मिनट बेटा, रे PQ आता है. ओके, सेगमेंट QR में क्या क्या आता है, रे QR भी आता है. देखो ये दोनों रे है, रे QR एंड रे PQ. क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेगी, रे QR एंड रे PQ is R लिखेगी. R सबसेट, R सबसेट रे QR and ray PQ which subset
सेगमेंट क्यू आर। ठीक है, सेगमेंट क्यू आर क्या है? सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, write the pair of opposite ray with the common endpoint r. Common endpoint r. Question number 5. I am repeating the question. Write the pair of opposite ray with the common endpoint r. तो कौन से रेस में एंड पॉइंट? तो रे आर टी, रे आर क्यू, रे आर टी एंड रे आर क्यू, आर टी एंड आर क्यू is the common endpoint. Ray RT and ray RQ. Ray RT and ray RQ pair of opposite ray, pair of opposite ray pair of opposite ray with common endpoint R. Question number 6. Any two ray with the common endpoint S. बोलो, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चाहिए बेटा हमें? एनी टू रे कॉमन एंड पॉइंट एस चाहिए। तो एस से स्टार्ट करेंगे, एस टी एस क्यू। सी इन द डायग्राम, एस टी you have to go left hand side, S R you have to go right hand side. So I am writing the answer 6. Ray ST and ray, बोलो, रे ST and ray SQ क्या है? अपोजिट रे है। अपोजिट रे common point with common end point with common end point S. सेम आंसर जो 5th में लिखे वैसे ही है, वहां पे एंड कॉमन पॉइंट क्या था? R था। ठीक है, अभी ध्यान देना है। ओके, पे अटेंशन। आंसर 7. Read the question. Write the intersection of the set of a ray SP and ST. कहाँ पे SP ST है? रे SP right hand side and ST लेफ्ट हैंड साइड जाना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट S, दोनों में कॉमन पॉइंट S है। तो अभी भी कोई भी रेस इंटरसेक्शन होते हैं ना, उसका कॉमन पॉइंट 1 होता है, और कौन सा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पॉइंट S, पे अटेंशन, पॉइंट S, point S is the intersection set
intersection set of, are you understanding or not? SP and ray ST. Bolo. Go through it. If any doubt, tell me. Take 2 minutes to revise this. Yes. Yes. Any doubt, please ask. Please ask. Okay. No doubt. Question number 6. We have a one number line I am drawing. ठीक है, 1 सेंटीमीटर का लेना है हमें पॉइंट सब. ठीक है, ए पॉइंट इज 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 6 ही है. ओके, ए पॉइंट 1 2 3 4 5 6. देखते हैं. Leave one point. I'm writing here A. अल्फाबेट ऊपर लिखेंगे. A. Leave one point. B. Leave one point. You have a C. Okay. After that, you write V point and D point. Written. अभी point लिखना है. Leave one point and write the P. Write P. Leave one point. No. L. Then Q. U. R. देखते हैं. चलो अभी उसमें पॉइंट रखेंगे. यस. क्या क्या दिया है? ए की जगह पे 0. पे अटेंशन, 0 लिखना है. बी पॉइंट वी हैव अ 2. C point we have a 4. Written. Next, B point don't have anything. D point we have a 6. Then P point we have a -2. Q point we have a -4. U point and R point we have a -6. Yes. Siddharth. Yes, -6. अभी सभी पॉइंट 1 सेंटीमीटर के लिए है. स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी पॉइंट. बी पॉइंट कहां पे पहले देखो. इफ आई, यहाँ पे बी पॉइंट है. देखो ग्रीन पेन से मैं नहीं कर रहा हूं. बी पॉइंट कहां पे है. इफ आई गो 2 स्टेप्स वी गेट सी पॉइंट. बोलो 2 स्टेप जाता हूं तो मुझे कौन सा पॉइंट मिलता है. सी पॉइंट. और लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉइंट जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है. ए पॉइंट. कैन आई राइट द आंसर. देखो, और दूसरे कौन से पॉइंट है. डी पॉइंट. 1 2 3 4 4 स्टेप जाता हूं तो मुझे डी पॉइंट मिलता है. एंड लेफ्ट हैंड साइड 4 पॉइंट जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा. बोलो.
लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो क्या मिलेगा 1 2 3 4 पी पॉइंट मिलेगा, इक्वी डिस्टेंस। चलो हम लिखेंगे अभी बी पॉइंट से मैं 2 स्टेप्स चलता हूं लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो कौन सा पॉइंट मिलता है हम लिखेंगे फर्स्ट आंसर। फर्स्ट आंसर लिखूंगा पॉइंट पॉइंट सी एंड पॉइंट वीडियो चालू एंड पॉइंट point A is equidistance from point B. ओके और भी पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे बोलो पॉइंट डी। 4 पॉइंट जाना है अभी, 4 स्टेप चलेंगे बेटा, 4 स्टेप बी पॉइंट से, तो मुझे कौन मिलेगा डी मिलेगा, राइट हैंड साइड डी मिलेगा और लेफ्ट हैंड साइड कौन मिलेगा 1 2 3 4 पी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बोलो पॉइंट डी एंड पॉइंट पी। पॉइंट डी एंड पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंस यहाँ पे हम आर लिख देंगे 1 मिनट, यहाँ पे भी आर लिख देंगे। देखो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस, पे अटेंशन प्रॉपरली। हाँ, दोनों साइड्स कौन से पॉइंट आएंगे। उसके बाद राइट द पेयर ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू। सेम है बेटा, कौन से पॉइंट है क्यू पॉइंट पे से हम इक्विडिस्टेंस जाएंगे, तो मैं लिखता हूं सेकेंड पॉइंट। ये दूसरी मेथड से हम आंसर लिखते हैं। चलो पॉइंट इक्विडिस्टेंस points equidistance from point Q। बोलो Q पॉइंट पे से इक्विडिस्टेंस कौन से है बोलो। फर्स्ट पॉइंट U एंड पॉइंट L। देखो 1 1 स्टेप हमको चलना है Q पॉइंट पे से बोथ द साइड 1 1 पॉइंट हम चलेंगे तो क्या आंसर आएगा U एंड L। 2 स्टेप चलेंगे तो क्या आंसर आएगा R एंड P। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? 2 पॉइंट जाएंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या आंसर आएगा बोलो। एल, एल यू और एल हो गया। अभी आर एंड पी, बस आर एंड पी, दिस इज द सेकंड सम। आस्क योर डाउट, go through it within a 1 or 2 minutes। Yes, you can solve question number 3 by your own। एकदम इजी है, बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट करना है। पहले कोऑर्डिनेट क्या है वो देखना है। यस, यू कोऑर्डिनेट वी कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें थर्ड सम यू कैन सॉल्व बाय योर ओन एट होम। यस, वेरी इजी, वी आर नॉट सॉल्विंग हियर, solving here। Yes, next, okay, we start exercise 1.3। any doubt in question number 3 you can ask in regular lecture, next lecture। ये
यस, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें खाली डिस्टेंस फाइंड करना है। यूवी डिस्टेंस पीसी, डिस्टेंस वीबी एंड डिस्टेंस यूएल, वो फाइंड करना है। ओके, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। उसमें है ना, हमें इफ देन स्टेटमेंट लिखना है। मैं बोलता हूं, इफ देयर इज अ क्लाउड्स इन द स्काई देन देयर विल बी रेन। क्लाउड से तो रेन होगा, रेन हो रही है, रेन हो रहे अभी, तो क्लाउड से, उसको इफ देन स्टेटमेंट बोलते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, कुछ पेज नंबर 11 पे 1.3 प्रैक्टिस सेट 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 1। आंसर 1, read the question. Opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram are congruent. Opposite angles of parallelogram are congruent. तो क्या लिखेंगे बोलो? If the given quadrilateral is parallelogram, if the given quadrilateral, if the given quadrilateral, if given quadrilateral if the given quadrilateral is parallelogram, कैसे लिखते देखो साइन में parallelogram, then opposite angles, then opposite angles are congruent, then opposite angles are congruent, then opposite angles are congruent। बेटा समझ में आया? पहले क्या बताए बोलो? अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। आंसर सेकंड, yes, read the question properly. The diagonal of a rectangle are congruent if the given quadrilateral is, if the given quadrilateral is rectangle, then diagonal are congruent। कैसे लिखेंगे देखो? If the given quadrilateral is rectangle, if, pay attention, question number second, if the given quadrilateral if given quadrilateral is rectangle, then its diagonal diagonal are congruent। समझ में आ रहा है? ओके, आंसर थर्ड, if the isosceles triangle segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, कैसे, कौन से ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं? देखो, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं थर्ड के लिए, पे अटेंशन प्रॉपरली।
एक डायग्राम. Yes. Which type of a triangle it is? Isosceles right angle triangle. Isosceles right angle triangle. B, C. M is the midpoint of BC और परपेंडिकुलर भी है. साइन कर रहा हूं, देखो ये दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों साइड भी इक्वल है. देखो ये दोनों साइड भी इक्वल है. ए बी इज इक्वल टू ए सी. पर हम कैसे लिखेंगे? If the line joining the vertex, if the line joining the vertex, line joining the vertex and opposite लिखना है हमको, जो दिया है ना उसके opposite, vertex with the midpoint of the base. तो मिड पॉइंट क्या है? बेस का मिड पॉइंट क्या है? मैंने लिखा है मिड पॉइंट ऑफ द बेस, then it perpendicular to base. परपेंडिकुलर के लिए साइन क्या है? परपेंडिकुलर टू इट्स बेस. समझ में आ रहा है ना? तो कैसे लिखना है एकदम ध्यान से देखो. If the line joining the vertex with the midpoint of the base, then it perpendicular to its base. Yes. Now question number second. चलो read the question. Question number second. Converse of the following statement. Converse means what? उल्टा. Same है. Reading the question. If alternate angles are formed by the two parallel lines, then transversal are congruent. फिर से बोल रहा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? alternate angles formed by the two parallel lines. Yes. Alternate angle formed by the two parallel lines and their transversal are congruent. तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, if the alternate angle form are congruent, alternate angle congruent होते हैं. If answer 1, if the alternate angle if alternate angles form are congruent are congruent then the lines are, बोलो, tell me, complete the sentence. Then the lines are parallel. समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? वापस एक्सप्लेन करता हूं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? alternate angle formed by the two parallel line. alternate angle बोले हैं, parallel line भी बोलेंगे, transversal are congruent. तो हम क्या बोलेंगे? if the alternate angles form are congruent, then the lines are parallel. ठीक है. Next, question number 2. Yes, question number 2.
इफ द पेयर ऑफ अ इंटीरियर एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, पहले इंटीरियर एंगल बोल देंगे। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। लाइंस आर देन सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल। तो हम बोलेंगे इफ द लाइंस आर पैरेलल, बोलो pair of a interior angle are formed, लिखेंगे देखो pair of interior angle, pair of interior angle are formed by a transversal of two parallel lines. Two parallel lines, एकदम ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट। आर पहले सप्लीमेंट्री बोला था, तो हमें अभी क्या बोलना है? लास्ट में सप्लीमेंट्री लिखेंगे। ओके, फिर से देख लेंगे। देखो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। अभी लास्ट, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। diagonal of rectangle are congruent if the diagonal of given rectangle are equal, diagonal equal होते हैं तो वो rectangle होगा। कैसे लिखेंगे देखो, if the diagonal third one if the diagonal of a given quadrilateral, diagonal of given quadrilateral are equal, equal means congruent, then समझ में आ रहा है? Then read the question properly, then it is rectangle. Okay, वापस देखिए। if the diagonal of a given quadrilateral are equal, then it is rectangle. ठीक है, here we complete our chapter, first chapter. In next lecture we start with parallel lines. Okay, don't remain absent, new chapter will start in next lecture. ठीक है, go through it, take 2 minutes. Yes, take 2 minutes and revise it. If you have a doubt, tell me. Yes, this is our practice set 1.3. बेटा कन्वर्स याद रखो, कन्वर्स उल्टा, इफ देन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। जो भी दिया ना, लास्ट में दिया ना, उसको आगे ले लेना है और आगे वाला पार्ट बाद में लिख देना है, तो इनवर्स हो जाएगा। मैंने खाना खाया, क्यों? मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी इसलिए मैंने खाना खाया। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करना है, सो यू नेवर कैन मेक अ मिस्टेक इफ देन स्टेटमेंट। यस, बोलो बेटा, कुछ बोलना है?
revise it properly. Yes, revise it properly. Any question? Any question? Tell me. Okay, we stop here and continue it in next lecture. We stop here and continue in next lecture. Lecture and lecture and yes.